السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر رفعت سراج کے ناول دل دیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 36ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ لائک شیئر اور کمنٹ کریں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ ابھی تک بہت سارے لوگوں نے جو یہ ناول سن رہے ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز آپ چینل سبسکرائب کر دیں۔ تیمور علی خان ماں کی حالت کے پیش نظر اٹھ کر تو آ گئے تھے، مگر بہت الجھ گئے تھے۔ پتہ نہیں انہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ پس پردہ کوئی بہت بڑا طوفان متحرک ہے جو سامنے آنے ہی والا ہے۔ وہ پھر بے قل انداز میں ماں کے پاس دوبارہ آ گئے تھے۔ یہ ان کے لیے مزید بہتر ہوا کہ وہاں محتربہ نہیں تھی۔ اماں جی آنکھیں مندے لیٹی تھیں۔ وہ خاموش انداز میں ان کے قریب پڑی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاں تو کنیز بھی سر ڈھانپ کر پھرتی ہیں اور بڑی آبرو کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں۔ وہ بے اختیار بڑبڑا رہی تھی۔ میرے اللہ، تو مان رکھ لے میری عزت رکھ لے، وہ پھر بڑبڑائیں۔ تیمور علی خان بری طرح چونک پڑے، جانے کیا کہ ان پر الہام ہونے لگا۔ پھر کسی یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے۔ نہایت مضبوط اعصاب ہونے کے باوجود ان کے نگاہوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی، دل بیٹھنے لگا۔ وہ احمق جاہل لڑکی اتنا نہیں گر سکتی، لیکن کیا پتہ گر گئی ہو۔ رات کی تاریکی میں چھپ کر کسی طوائف سے نکاح کرنے والا ایسا روشن ضمیر ہوتا تو نکاح روشنیوں میں ہوتا۔ خالی کاغذی نسب سے کیا ہوتا ہے؟ کہہ تو دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تقویٰ سے بلند کوئی نسب نہیں۔ آ تو گئی ہے وضاحت ساری کی ساری خطبہ جمعۃ الوداع میں۔ یہ ہم زنگ کھائے ہوئے انسان ابھی تک نسب کی حقیقت سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ تو یہ بات ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر کارروائی کا آغاز کس طرح ہونا چاہیے؟ ہم نہیں چھوڑیں گے اسے۔ ان کی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا۔ اماں جی، ہم خاصے آزاد خیال، تھوڑے سے نافرمان، اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کے معاملے میں تھوڑے بے لچک اور سنگ دل ضرور ہیں، مگر اس درجہ کمینے اور گھٹیا نہیں ہیں۔ وہ خود پر کنٹرول کھو چکے تھے، اور کچھ اس بات کی بھی جلدی تھی کہ ماں کو تکلیف و کشمکش سے نجات دلا دیں جس کے سبب ان کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے بے اختیار ماں کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ان کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ اماں جی نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ تیمور کے جملے نے انہیں تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ اماں جی کی آنکھوں میں نئے سرے سے جگمگاہٹ آ گئی۔ جب آپ کو یقین ہے تو پھر آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ تیمور علی خان کے انداز میں شکوہ تھا۔ یہ تو اس بات کا صدمہ ہے کہ میرے گھر میں اس طرح کی بات ہوئی کیوں؟ خواہ غلط خواہ صحیح، ہمارے ہاں ایسی بات کا کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اماں جی میں نئے سرے سے توانائی آتی محسوس ہو رہی تھی۔ تو پھر جھگڑا کیا ہے جب کوئی بات ہی نہیں ہے، پڑی ہوئی ہے ایک طرف، تمہارا کیا لیتی ہے بیٹے؟ چھوڑ دو اسے اس کے حال پر۔ وہ تیمور علی خان سے گویا سفارش کر رہی تھی۔ حد ہو گئی اماں جی، ابھی بھی آپ اس کی سفارش کر رہی ہیں۔ اب تو آپ کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اسے یہاں سے شفٹ کر دیں تاکہ آئندہ اس قسم کا کوئی مسئلہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ اتنی گھٹیا الزام تراشی، وہ بھی ہم پر، آپ کے بیٹے پر۔ اماں جی پلیز اب تو ہوش میں آ جائیں۔ استجاب، خفگی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت تھی اس وقت ان کی۔ کم عقل ہے، سمجھا دوں گی اسے۔ بے سہارا بچیوں سے بھرے کنوؤں میں رہنے کا تجربہ بھی نہیں ہے، اور رشتوں کی نزاکتوں تک اس کے دماغ کی پہنچ نہیں ہے۔ جانے کس بات کو کس رنگ میں لے بیٹھی ہے۔ میں تمہارے بابا صاحب کو یہی سمجھانا چاہ رہی تھی، اس طرح غصے اور تیزی میں نہیں سوچے۔ میرا تیمور اپنی بھاوجوں کی جتنی عزت کرتا ہے شاید ہی کسی دیور نے کبھی کی ہو، نہ ہی ناظرین کوئی ایسے گرے پڑے گھر کی ہے جہاں گدھے گھوڑے ایک ہو رہے ہوں۔ یہ ناز بھابھی کا اس قصے میں کیا ذکر؟ تیمور علی خان نے خفیف سے تعجب کا مظاہرہ کیا، اگرچہ اندر کہیں ایٹم بم گرا تھا۔ اماں جی ان کی شکل غور سے دیکھنے لگی۔ تو پھر کس کا ذکر؟ مگر وہ ماں چپ ہو کر رہ گئی۔ دونوں ماں بیٹے اپنی اپنی خاموشی میں کچھ ڈھونڈنے لگے تھے۔ دونوں کو ادراک ہوا تھا کہ بات وہ ہے جو سمجھی جا چکی ہے، اور نہ ہی وہ ہے جو سمجھائی جا چکی ہے، بلکہ بات وہ ہے جو نوکے زبان پر آنا ہر طرف کسی مرحلے سے کم نہیں۔ دکھ ہو کہ خوشی، دونوں کیفیات ان گنت موڑ رکھتے ہیں۔ ان کی لاتعداد منزلیں مقرر ہیں، مرحلے متعین ہیں۔ دونوں ماں بیٹے اس وقت دو علیحدہ علیحدہ کیفیات سے گزر رہے تھے۔ اماں جی کی حیرت تکلیف دہ الجھن میں تبدیل ہو گئی۔ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اماں جی کہ ناز بھابھی کا اس سے کیا تعلق؟
हम तो उस बेहिस व बेज़मीर लड़की का जिक्र कर रहे हैं जिसने हमें आपकी नज़रों से गिराने की कोशिश की है। फिर ये भावजों का या देवर भाभी के रिश्ते का जिक्र दरमियान में कहाँ से आ गया? ऊँचे चौड़े तैमूर अली ख़ान के सीने में एक ज़रा सा दिल ने तबाही मचा रखी थी। वो बात जो समझ में आ रही थी इतनी खौफनाक थी कि उस वक्त उन्हें आला दर्जे के मुआवजाती गैबी अमदाद दरकार थी जो उन्हें किसी इंतहाई कदम से बाज रख सके। आप चुप क्यों हैं अम्मा जी? एक बात बता दें हम आपको, अगर हम उसके 100 टुकड़े यावर भाई के सामने ना कर दें तो फिर कहिएगा। वो मुट्ठियाँ भींचते हुए उठ खड़े हुए। इतनी हिम्मत उस कम ज़र्फ़ की, अभी निपटते हैं। अम्मा जी रोकती रह गई मगर वो बाहर निकल गए थे। सामने ही मामा बिल्ली आ गई थी। मामा, मुतरबा कहाँ है? सुना है जब इंसान पर खून सवार होता है तो उसके अपने खून से भाप उड़ रही होती है। मामा को उनके वजूद से कच्चे गोश्त की बू आने लगी कि उनकी आंखें अंदर का भेद दे रही थी। मामा तो थर थर काँपने लगी। खान अभी तो यहीं थी, बावर्ची खाने में। नहीं, अपने कमरे में नहीं, वो उधर बाग में। मामा की बदहवासी ने गोया जल्दी पर तेल का काम किया। मामा, हमें ठीक जगह पहुंचा दो वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। उनकी गुर्राहट बता रही थी कि बशरियत के दायरे से निकलकर इतनी दूर आ गए हैं कि उन्हें वापस लौटाने की कोशिश में आला दर्जे की नाकामी होगी। उसी दम अम्मा जी भी हाँफती काँपती चली आई थी। अरे मेरे बच्चे, मेरे बात तो सुन। तूने बात तो सुनी ही नहीं। वो यूँ चमकाने लगी जैसे छोटे बच्चे को बहलाते हैं, मगर तैमूर अली ख़ान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसी दम मुतरबा बारी की उंगली थामे एक मोड़ से राहदारी में नमूदार हुई। वहाँ की सूरत हाल पर कदरे ठटकी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। तैमूर अली ख़ान उसकी तरफ अक्काब की तरह झपटे थे। मुतरबा के हवास इतने चौकस थे कि वो आन के आन में बहुत कुछ समझ गई। वो बारी को वहीं छोड़कर बाबा साहब के कमरे की तरफ सरपट भागी। दिलावर अली ख़ान टेलीफोन पर कोई बहुत ज़रूरी बात राजदाराना अंदाज में कर रहे थे। दरवाज़ा धड़ से खुला और मुतरबा गिरती पड़ती अंदर घुसती नज़र आई तो उन्होंने मुखातिब को मुताला किए बगैर रिसीवर रख दिया। क्या बदतमीज़ी है लड़की? वो हैरान भी थे और नाराज़ भी, मगर सिर्फ नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे थे। खान, वो उनके बेड के पुष्ट पर आ खड़ी हुई। खान, वो तैमूर खान, मुझे बचा लें। अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि तैमूर सुस्त कदमों से अंदर दाखिल हुए। बाप की मौजूदगी को शायद वो किसी भी मूड में नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। अजीब बेबसी उन पर छा गई थी। उधर अम्मा जी ने अमदादी कार्रवाई का कोरम पूरा करने की गर्ज से यावर अली ख़ान को पुकार लिया था। क्या हुआ है बेटे? होश में आओ, ये औरत ज़ात है। वो बहुत ही घबराए हुए खौफजदा अंदाज में तैमूर अली ख़ान को झिझोड़ रही थी। यावर अली ख़ान भी बाबा साहब की ख्वाबगाह में दाखिल हुए। यही भूल हम सब से हो गई, ये औरत ज़ात नहीं है। इज़्ज़त नफ्स पर ऐसी कारी पड़ी थी कि सारा कद्साब, सारी सीख उड़न चू हो गई थी। अब तो मंजर पर एक खुश शक्ल हैवान गुर्रा रहा था। बेटे, उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, तुम मेरी बात तो सुनो। अम्मा जी फिर मल्तजी अंदाज में तैमूर अली ख़ान की ठोरी छू कर बोली। अच्छा, इसने कुछ नहीं किया? फिर ऐसा क्या हुआ कि यावर भाई हमारी शक्ल से बेजार हैं? बात तो अभी अभी समझ में आई है। वो ख़ुद पर काबू पाते हुए बमुश्किल गोया हुए। हमारा नाम मत लो तैमूर, हम तुमसे पहले से मुताला कर चुके हैं। गलत बयानी साबित हुई तो इसका अंजाम हमारे हाथों बहुत इबरतनाक होगा। ये बेवकूफ़ व कम अकल ज़रूर है, पागल नहीं है। यावर अली ख़ान का लहजा कतन गैर जानिबदार और सपाट था। आप लोग बैठ जाएं, बाबा साहब के पुरजलाल आवाज़ गूंजी। अम्मा जी तो ताबेदार बच्चे की तरह झट बैठ गई, इस आस में कि खान साहब इस अजाब से निकालने के लिए कोई बेहतरीन इक़दाम करने वाले हैं। उनकी नाजुक तबा इस कदर तनाव ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यावर अली ख़ान बाप के करीब पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गए। तैमूर अली ख़ान सोफ़े पर बादल नखास्ता बैठ गए। तुम इधर आओ लड़की, हमारे सामने खड़ी हो। वो अपनी छड़ी पर दोनों हाथ मजबूती से जमाए खड़े थे। बग़ैर हरकत किए उन्होंने मुतरबा को मुखातिब किया। मुतरबा सर पर चादर टिकाती आहिस्ता चलती उनके बहुत करीब आकर खड़ी हो गई, ज़ाविये से कि दोनों भाई किसी भी वक्त अगर उसे नुकसान पहुंचाने की कैफियत में आ जाएं तो बाबा साहब से गुजरे बग़ैर उस तक ना पहुंच सके। बाबा साहब का बेड दाखिली दरवाजे से काफ़ी फासले पर दरीचे के बिल्कुल साथ लगा हुआ था। दीवारों और बेड के दरमियान बमुश्किल 8 इंच का फासला था, जहाँ कुछ देर कबल मुतरबा फंसी हुई थी। जिस सोफ़े पर तैमूर बैठे थे वो दाखिली दरवाजे के बिल्कुल साथ था, और जिस कुर्सी पर यावर अली ख़ान बैठे थे वो कुर्सी बेड की पायतीनी की तरफ था, जबकि यावर अली ख़ान और मुतरबा के दरमियान बाबा साहब सरोकद खड़े थे।
अम्मा जी यावर अली ख़ान के करीब बेड पर टिकी हुई थी, अनिहायत हवास बाख्ता थी। कभी इस तरारी अंदाज में दुपट्टा संभालती, कभी बेटियों की शक्ल देखने लगती थी। तुम्हें ना आदाब ग़ुलामी आते हैं, ना ही आदाब मुख्तारी। अब बदनसीब लड़की, तुम्हें इतनी जुर्रत हुई कैसे कि तुम यावर अली ख़ान से इस किस्म की बात कर सको? जुर्रत कभी नज़रअंदाज कर दे तो यूँ क्यों ना कहें कि तुम इस कदर बेहया हो चुकी हो। औरत के पास हया के सिवा एहसास ही कौन सा होता है। हमारे मुँह में खाक। अगर किसी किस्म की सुनगुन तुम्हें मिल गई थी तो क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि तुम मालकिन के होते हुए घर के लड़कों से बराह रास्त बात करो? सही या गलत, छुरा भी उसकी पीठ में उतारो जिसने तुम्हारी भलाई के लिए सबसे ज़्यादा जुर्रत दिखाई, अमली काम किया। क्यों की तुमने ये हरकत? वो बेगैर निगाह उठाए मुतरबा से मुखातिब थे। वो खामोश खड़ी उंगलियां चटखाती रही। क्या तुम्हें इधर हवेली में किसी ने मशवरा दिया था कि यावर अली ख़ान से तुम खुद बात करो? वो फिर खामोश खड़ी रही। देख रहे हैं आप सब इसकी डिटाई? तैमूर अली ख़ान ने शोला बार निगाहों से उसे घूरा। मुतरबा ने निगाहें उठाकर तैमूर अली ख़ान की सिम देखा। मैं पीछे कांच पर लौटती थी खान, तुम्हारे शिमले में फंदे लटक रहे थे। तुम्हारा दोस्त सूब उठता था जैसे जन्नत से होकर आता था। तुमने मुझ पर एहसान किया या नए सिरे से मुझे नीच होने का एहसास दिलाया? खुद तो तुमने कभी महसूस होने नहीं दिया कि मेरी भी कोई हस्ती है। मुझे तो घड़ी घड़ी बड़ी खामोश ताकीद की गई कि अपनी औकात पहचानो, और नहीं तो मेरा दुख सुन लिया था। बगैर आवाज़ के तो बगैर कुछ दिए एक तरफ हो जाते। नहीं, तुम कुछ पा गए थे, इसीलिए मुझे सज़ा दी थी। हिफाजत के और दूसरे रास्ते भी थे। मेरा तन मन रोन दिया गया। मेरे दिल की कोई कीमत नहीं है। मैं बगैर खुशी के रह सकती हूँ तो और सब क्यों नहीं रह सकते? जब मैं बर्बाद होकर सांस ले सकती हूँ तो दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मुद्दतें हुई खुली आंखों सुबह की पूप उठते देखती हूँ। अगर ये सब बेकसूर हैं तो मैं भी बेकसूर थी। इनकी कोई और दुनिया और कोई खुदा नहीं है। तुम्हें क्या पता खान, अपना वजूद पेश करना औरत की सबसे बड़ी सखावत और सबसे बड़ी हार है। मगर यह हार मर्ज़ी की हो तो औरत गुलाब उगाती है, और मर्ज़ी की ना हो तो उसके डाके पर कभी ख़ुद को माफ़ नहीं करती। मेरे अंदर आग दहक रही है। मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मैं किसी पर रहम नहीं खाऊंगी। सब कुछ जलाकर खाक कर दूंगी। जब मैं रो सकती हूँ तो दूसरे क्यों नहीं रो सकते? जब मैं मर मर के जी सकती हूँ तो और क्यों ऐसा नहीं कर सकते? जब मेरी हंसी के बग़ैर आसपास खुशी बरस सकती है, जब अली के बग़ैर इसके जीते जी उसके माँ बाप ज़िंदा रह सकते हैं, जब उसके बग़ैर उसका महकमा चल सकता है, जब मेरे बग़ैर मेरी माँ ज़िंदा रह सकती है, जब मेरा बाप अपना नसब एक तवाइफ की झोली में डाल सकता है, तो फिर सब कुछ हो सकता है। वो मेरे हाथ तो आए, फिर बताऊंगी उसे भी भूल की कीमत। बेअदब, क्या गूंगी बनी खड़ी है? क्या पूछ रहे तेरे बड़े खान? अम्मा जी ने उसकी मुसलसल खामोशी पर निहायत नाराज़गी से टोका। क्या? वो बुरी तरह चौंक कर उनकी सूरत देखने लगी। जी खान, क्या पूछा आपने? तूने यावर से क्या उल्टी सीधी बात की है? शर्म आना चाहिए तुझे खानों से इस तरह बात करते हुए। अम्मा जी को अंदाज़ा था कि दिलावर अली ख़ान इस वक्त खून के घूंट पी रहे हैं, लिहाजा उन्होंने शरीक हयात की माउनत की। यावर ख़ान बहुत मेहरबान, बहुत नेक इंसान है। वो सबकी इज़्ज़त का हक़ पहचान कर बात करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा उनका अपना भाई उनके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर रहा हो और उन्हें ख़बर भी ना हो। कमरा हिला था या पूरी हवेली या छत सर पर आ रही थी। कमरे में इस तरह की खामोशी थी जैसे किसी मरने वाले की आखिरी हिचकी से पहले माहौल में सकूत छाया होता है, जबकि उसके पलंग के पास हर तरह का रिश्ता मौजूद था मगर लब बस्ता होता है। तैमूर अली ख़ान यूँ बैठे उसे देख रहे थे जैसे किसी तस्वीर के मंतज़र हो, जैसे वो बोलना कुछ और चाह रही हो और बोल कुछ और गई हो, या फिर उन्हें ही मुगालता हुआ हो। आप ख़ुद बताएं बड़े ख़ान, मैं ये बात और किसी से क्यों करती? इसका क्या फ़ायदा होता? यावर ख़ान ही अपनी बीवी से बात कर सकते हैं। मैं बहुत दफ़ा बहुत कुछ देख चुकी हूँ। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने यावर अली ख़ान से कह दिया। यावर अली ख़ान ने जूते की टो से कालीन को मसला, फिर एक झटके से उठकर बाहर निकल गए। अम्मा जी सकते की कैफियत में दिल पर हाथ रखे बैठी थी। तैमूर अली ख़ान दुख और हैरत से पथरा कर रह गए। दिलावर अली ख़ान इंतहाई शिकस्ता अंदाज में बीवी के पहलू में बैठ गए। हाथ हनूस छड़ी पर मजबूती से जमे थे मगर सर झुका हुआ था। रईसा की माँ, इससे पूछो ये ऐसा क्यों कर रही है? उनकी कमज़ोर सी आवाज़ कमरे में उभरी। अगर ऐसा कुछ था तो उसे ज़बान सीना चाहिए थी या ये सब करना चाहिए था। अम्मा जी खाली खाली आंखों से मुतरबा की शक्ल देख रही थी।
चंद सानिया बाद तैमूर अली खान अपनी जगह से उठे और आहिस्ता आहिस्ता चलते मुतरबा के करीब आए। बाबा साहब ने अपने अंदाज़ नशिस्त में कोई तब्दीली नहीं की। अम्मा जी में हरकत की सक्कत न थी। मुतरबा उछलकर 2 कदम पीछे हट गई। तैमूर अली खान 13 पॉइंट मालियत की ब्लैक स्टाइलिश पतलून और लेमन कलर शर्ट में मलबूस भला के खूबसूरत और पुरकशिश नज़र आ रहे थे। क्या चाहिए तुम्हें? उनकी आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। मुतरबा सर झुकाए होंठ काट रही थी। बाबा साहब की मौजूदगी से थोड़ी बहुत तकवियत ज़रूर थी, मगर तैमूर अली खान से उस वक्त हर तरह की उम्मीद की जा सकती थी। हम पूछ रहे हैं तुमसे कुछ, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा साहब, अम्मा जी इस वक्त यहाँ मौजूद है। हम तुम्हें इस बात की ज़मानत देते हैं कि हम में से कोई भी तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मगर शर्त यह है कि तुम हम तीनों की मौजूदगी में सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। ज़मीन, हवेली, या वो कदरे झिझक कर रुके, या तैमूर अली खान जैसे पेट्रोल पड़ा हुआ था। तीली दिखाने की देर थी। ऐसी भड़ आग लगी, तन मन खाकस्तर होने लगा। वो 2 कदम मज़ीद पीछे हट गई। अम्मा जी ने दोनों हाथों से सर थाम लिया था, जैसे वह कहीं उखड़ कर भागा जा रहा हो। बाबा साहब पूरे इल्म और वक़ार से सूरत हाल का सामना कर रहे थे। खुदगर्ज़ लड़की, तुम इतना आगे निकल जाओगी, हमें ये उम्मीद नहीं थी। इंसान का पहला कंफर्ट रोटी के बाद ये है कि सोसाइटी में उसकी इज्जत हो। दिल की तमाम ख्वाहिशात उसके बाद आती हैं। लॉजिकली हमने उसी का बंदोबस्त किया था। तुम्हारे पास ऑलरेडी ये सब होता तो हम तुम्हारी दूसरी ज़रूरियात को अहमियत देते, मगर तुम इल्म व फजल की पैदावार होती तो ये नुक्ता समझ में आते। बता दो बाबा साहब को, ये असल में तुम्हें क्या चाहिए, बताओ। उन्होंने उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली लगाकर चेहरा ऊंचा किया। उसकी हैरत से फटी आंखें तैमूर अली खान के चेहरे पर टिक गई। वो तो बेखबरी के मातम करते करते पागल हो गई, मगर यहाँ तो खबर सी खबर थी। पहले कहीं इतना भी हो जाता तो वहशत ये मकाम क्यों देखती। उसकी जो दुनिया ही बदल गई थी। उसने यूँ तैमूर अली खान को देखा जैसे कुर्बान हो जाएगी। ये तुम इससे किस तरह की बातें करने लगे हो तैमूर? बाबा साहब ज़्यादा देर खामोश ना रह सके। हर नई बात नई अजियत थी। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि हम तुम पर थूक ही देते। बताओ बाबा साहब को, यावर भाई को, नाज भाभी को, तुमने ये घटिया हरकत किस लिए की? बोलो, खामोश क्यों खड़ी हो? उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। बताओ, वरना हम तुम्हारा हशर कर देंगे। एक झनाटेदार थप्पड़ उन्होंने मुतरबा के गुलाबी रुखसार पर जड़ा तो 5 उंगलियों के निशान वाज़ेह तौर पर उभर आए। अम्मा जी काँप कर खड़ी हो गई और मुतरबा और तैमूर अली खान के दरमियान खड़ी हो गई। ये ना करो मेरे बच्चे, तुमने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने तैमूर अली खान के दोनों हाथ थाम लिए। पहले कभी ऐसा हुआ भी तो नहीं अम्मा जी, हम खड़े खड़े लुट रहे हैं, आप दरमियान में ना आए प्लीज़। वो मुश्किल खुद पर काबू पाकर मुखातिब थे। आप इधर आराम से बैठ जाएं। बाबा साहब ने भी उन्हें टोका। मुतरबा रुखसार पर हाथ रखे नज़रें झुकाए चुप खड़ी थी। तुम भी इधर आओ तैमूर, जितनी बात हम समझ रहे हैं इस हवाले से हम खुद इससे बात करते हैं। दिलावर अली खान छड़ी पर जोर डालकर उठ खड़े हुए। अपना मकाम पहचानती हो लड़की? वो जागीरदार है जिसे इंग्लिस्तान का कोई लॉर्ड भी खुशी से बेटी दे देगा। तुमने ये सब अंदाज़ा कर लिया था, तभी ये गंदा ड्रामा खेला। क्या तैमूर सही कह रहा है? हम ठीक समझे हैं? वो बहुत रसानियत से पूछ रहे थे। मुतरबा ने नज़रें उठाकर तैमूर अली खान की सिम देखा। नफ़रत से उसका चेहरा झुलस रहा था। फिर उसने बाबा साहब की सिम देखा। जो बात आपके बस में नहीं छोटे खान, वो आपने मुंह से भी क्यों निकाली? मैंने तो कभी आपसे कुछ नहीं कहा। आप लोग जो चाहें मुझे सज़ा दें, मुझे जो कहना था कह दिया। उसकी अकल पर इतने भी पत्थर नहीं पड़े थे कि वो बड़े खान के सामने बात बदलकर अपने बदतरीन अंजाम को दावत देती। तुम किसी के सामने अपनी गलत बयानी का एतराफ़ करो ना करो, मगर यावर के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो और बताओ कि तुम्हारी हमाकत व जहालत ने तुमसे ये सब करवाया है और फिर तुम हमेशा के लिए सिराए चली जाओ। होना तो ये चाहिए कि तुम्हें धक्के देकर हवेली से बाहर कर दिया जाए, मगर हम अपनी बच्चियों के सदके तुम्हारे साथ रियायत कर देते हैं। लेकिन एक बात और ये कि हम कभी तुम्हें अपने सामने ना देखें। अगर हम मर जाएं तो हमारे जनाजे से तुम्हें 100 गज़ दूर रखा जाए। दिलावर अली खान ने अपने आला दर्जे का गज़ब बहुत धीमे अंदाज में ज़ाहिर किया था। मगर क्यों खान? मैंने कब कहा है कि मैंने जो कहा है गलत कहा है? यह अलबत्ता सही है कि मुझे यावर खान के बजाय अम्मा जी को बताना चाहिए था। उसने रुखसार पर हाथ रखकर निहायत संग दिली से तैमूर अली खान की सिम देखा।
जानते बूझते दुख दिए, जलील किया। क्यों दिया था किसी के हाथों में? खिलौना दिया था दोस्त को खेलने के लिए। मेरे रोए रोए से बेबसी का वो एहसास रिस रहा था जब मैं रोज़ जीते जी मरती थी। अब हम एक जैसे रहेंगे, कोई खुश नहीं होगा। अगर कोई भूल कर खुश हुआ तो उस पर तेल छिड़क कर आग लगा दूंगी। यकीनन उसका जहनी तवाज़न बिगड़ चुका था। अम्मा जी ने तैमूर अली ख़ान की सिम देखा। सुन रहे हो क्या कह रही है? उसका सिर्फ एक ही हल है, लोहे की सलाख से इसका जिस्म दागा जाए, फिर तो सच बोलेगी। वो खूनी लहजे में घर्राए। अरे तौबा, क्या आफत आई है, अब ये भी करोगे? यूँ तो घोड़े से भी गधा कहलवा लोगे। अम्मा जी ने अपना चकराता सर थाम लिया। बाबा साहब, तैमूर अली ख़ान बाप से मुखातिब हुए। तैमूर, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, हम खुद देख लेंगे। हम यहाँ से उस वक्त ही जाएंगे जब अपने माँ बाप की नज़रों में सरखुरू होंगे। ये बहुत मकार है, हमें मज़ीद नुकसान पहुँच सकता है। आप याद करें, तारीख गवाह है, मैदानों में जीती हुई जंगें औरतों की सियासत से हार में तब्दील हुई हैं। औरत बीच में आई और फतह शिकस्त में बदल गई। हालांकि ना बहादुरों में कमी थी, ना हथियारों में। बाबा साहब और अम्मा जी चौंक कर तैमूर अली ख़ान का चेहरा देखने लगे। दिल तो यही कहता था कि तैमूर ये सब नहीं कर सकते। अब तो उन्होंने उल्टा मुतरबा को मूरद इल्ज़ाम ठहराया था, जिसके बाद भी बयान नहीं बदला था। मगर ये बुज़दिल सी लड़की हनूज़ अपनी बात पर कायम थी। अब क्या नाज़नीन को भी बुलाएं? इस ख्याल से दोनों ही को शर्म आ रही थी कि वो बहू से इस मौज़े पर बात करें। दिलावर अली ख़ान बहुत सोच समझ कर अगला कदम उठाना चाहते थे। देखो तैमूर, हम बिला सोचे समझे तुमसे बदगुमान क्यों होंगे, जबकि हकीकत अभी भी पोशीदा है। कुछ भी पोशीदा नहीं है बाबा साहब, हम इसकी तमाम सियासत समझ चुके हैं। वो बरहम हुए। वो हम इससे कबूल करवा लेंगे, मगर यावर के सामने। जाओ बेटे, आराम करो। हम तुम्हारे साथ किसी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप भी आराम कीजिए। इस बात का ख्याल रहे कि इस वाक़े की हवा भी नाज को ना लगे। बाबा साहब ने अम्मा जी से बहुत नरमी से कहा। अजी, अब कैसा आराम? अरे जैतून बानो, भली नेकी की बेटी तूने हमारे साथ। अम्मा जी की अंदरूनी लूट फूट उनके चेहरे से आया थी। एक लम्हे को मुतरबा के दिल को कुछ हुआ। बेसाख्ता उसका जी चाहा अम्मा जी के पाँव थाम कर माफ़ी मांग ले, मगर दोनों खानों की सिमत निगाह डाली तो थर्रा कर रह गया। अब तो ज़िंदगी की शर्त थी ज़ुबान पर कायम रहना ठहरी थी। फिर तैमूर अली ख़ान की मौजूदगी में वो तो यूँ भी बहुत संग दिल हो जाया करती थी। अब तो जो होना था हो चुका था। मुतरबा ने गहरी सांस लेकर तैमूर की सिम देखा था। उसी दम आलमताब घबराई हुई अंदर दाखिल हुई। अम्मा जी, वो नाज की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कह दिया है, आप भी चलिए। अम्मा जी एकदम खड़ी हो गई। यावर कहाँ है? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बस आप जल्दी चलिए। उसी अस्पताल चलना है जहाँ नाज ने नाम लिखवाया है। मुदब्बे लहजे में गोया हुई। वो इतनी परेशान थी कि उन्होंने कमरे के गैर मामूली सूरत हाल की तरफ भी तवज्जो नहीं दी थी। ओह, अम्मा जी की समझ में बात आ गई। उन्होंने बाबा साहब की तरफ देखा। मुझे छोटी दुल्हन के साथ जाना होगा, आप फिक्र न करें, कोई ऐसी बात नहीं। वो आलमताब के पीछे निकल गई। लड़की, तुम भी जाओ, बारी को हमारे पास छोड़ दो। आज से उसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मज़ीद तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए सोच कर बताएंगे। बाबा साहब का लहजा बिल्कुल सर्द सपाट था। अब तुम जा सकती हो। गोया उन्होंने जता दिया कि अब उसकी कोई बात न सुनी जाएगी। वो फ़ौरन बाहर निकल गई। दुल्हन अस्पताल जा रही है, यावर का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, मगर वो है कहाँ? वो खुद कलामी के अंदाज में कह रहे थे। तैमूर अली ख़ान खामोश रहे। बाबा साहब चंद सानिए कुछ सोचते रहे, फिर बाहर चले गए। 6 अगस्त का रौब पहली उजाला ठीक से फैला भी नहीं था कि हवेली में खबर आ गई कि यावर अली ख़ान एक बहुत खूबसूरत बेटी के भी बाप बन गए हैं। बेटे की पैदाइश के बाद बेटी की खबर बहुत खुशी के साथ सुनी गई, मगर सब खुशी मनाने वाले अफराद के दरमियान बाबा साहब और तैमूर अली ख़ान बहुत परेशान थे कि रात से अब तक यावर अली ख़ान का कुछ पता न था। तमाम मुमकिन जगहों पर फ़ोन कर डाले थे, मगर सब जगह से लाइल्मी का इजहार किया गया था। नाज़नीन बार बार यावर अली ख़ान का पूछ रही थी। सूरत हाल संगीन हो रही थी। तैमूर अली ख़ान हज़ार परेशान सही, मगर उनके हवास बेहाल नहीं थे। बारी को मामा बिल्ली के पास पहुंचाकर उन्होंने मुतरबा का कमरा बाहर से बंद करवा दिया था। उनका वजूद उन अनदेखी आग में सुलग रहा था। वो भतीजी को देखने अस्पताल भी नहीं गए थे। जाने क्यों नाज़रीन के सामने जाने का हौसला वो खुद में नहीं पा रहे थे। एकदम ही उसे बहुत फासला महसूस होने लगा। एक वहशत ये भी थी कि यावर अली ख़ान कुछ कर न बैठे, क्योंकि उनके अंदाज से महसूस हो रहा था कि उन्हें मुतरबा से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है
اور اس میں حیرت کی بات بھی کیا تھی، ایک کمزور لڑکی اتنے مضبوط لوگوں کے درمیان انتہائی جرأت سے کچھ کہہ جائے تو سننے والے دماغ کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ اسی سبب انہیں بھائی کی طرف سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں تھے۔ انہیں اسپتال سے کئی فون آ چکے تھے، اماں جی انہیں بلا رہی تھی، باقی خواتین واپس حویلی آ چکی تھی۔ جب ٹہلتے ٹہلتے ان کا وجود سن ہونے لگا تو وہ بالآخر کوئی فیصلہ کر کے اندر آ گئے، اپنے کمرے سے بائک کی چابی اٹھائی اور تھوڑے فاصلے پر موجود شہر کے اسپتال کا رخ کیا جہاں نازنین موجود تھی۔ برآمدے ہی میں اماں جی مل گئی۔ مبارک ہو، اللہ نے بہت پیاری بھتیجی دی ہے۔ کتنی کھوکھلی ہنسی ہو رہی تھی ان کی آواز میں۔ شکریہ اماں جی، آپ کو بھی مبارک ہو۔ ان کا بھی انداز بجھا بجھا سا تھا۔ یاور کی کوئی اطلاع آئی؟ اماں جی نے ان کی شکل بغور دیکھی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اماں جی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے تو ناز کے سامنے جاتے ہوئے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اللہ اسے ہر بری خبر سے بچائے۔ تم ایسا کرو، اسے یہ کہہ دو کہ اسے اچانک ضروری کام سے حسن ابدال جانا پڑا ہے، کوئی سرکاری مسئلہ ہے، 1-2 دن میں آ جائے گا۔ اماں جی نے راہ سجھائی۔ وہ زندگی موت کی جنگ لڑ کر نڈھال پڑی ہے، اسے بس ہر طرح سے پرسکون کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ان کا انداز درخواست گزار کا سا تھا۔ جی آپ فکر نہ کریں۔ کس طرف ہے ان کا کمرہ؟ انہوں نے اپنے منتشر ذہن کو بمشکل سمیٹ کر پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اماں جی اپنی چادر درست کر کے چہرہ ڈھانپ کر ایک طرف کو چل پڑی۔ انہوں نے بھی تقلید کی۔ طویل راہداری میں وائٹ دروازوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ اماں جی ایک دروازے کھول کر اندر داخل ہوئی تھی اور انہوں نے اندر قدم رکھتے ہی چند لمحے رک کر کچھ سوچا تھا یا پھر اپنے چہرے پر نقش ہر تحریر مٹانے کی کوشش کی تھی۔ اندر داخل ہوئے تو ناظرین کو باتھ روم کے دروازے سے باہر آتے دیکھا۔ ایک نرس اس کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ اس کے سر میں ڈھیر سارا تیل یقیناً اماں جی کی ہدایت پر ہی ڈالا گیا تھا۔ خوب کس کر چوٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہلکے سبز کپڑوں میں وہ بہت ہی زرد محسوس ہو رہی تھی۔ کان، ناک، گردن ہر طرح کی جویلری سے آزاد تھے، حتیٰ کہ کلائیاں تک سونی پڑی تھی۔ اس کے باوجود اس کا حسن اسی طرح دو آتشہ تھا جس طرح سجی بنی حالت میں ہوتا تھا۔ وہ تیمور کو دیکھ کر بڑے پھیکے انداز میں مسکرائی۔ السلام علیکم۔ تیمور علی خان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ تم تو بڑے لبرل ہو، پھر کیا بھتیجی کی پیدائش سے خوشی نہیں ہوئی؟ ایک اور بھتیجا چاہیے تھا، وہ نکاہت بھری آواز میں بولتے ہوئے بیڈ سے ٹک گئی۔ ایسا نہیں ہے، سنا تھا آپ کی طبیعت خاصی ناساز ہے، سنبھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے سنبھل کر جواب دیا۔ چلو خیر، تم تو چچا ہو کر پھر بھی آ گئے، باپ کو تو ابھی تک ہوش نہیں تھا۔ وہ دکھ چھپاتے ہوئے مسکرائی۔ کیسی باتیں سوچنے لگی ہیں بھابھی، ایمرجنسیز بھی ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ آتے ہی ہوں گے یاور بھائی، اتنی جلدی دل برا نہیں کرتے۔ اچھا بناؤ نہیں مجھے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ان کا موڈ کیسا ہو رہا تھا؟ یہ تو وقتی باتیں ہوتی ہیں بھابھی، آپ خواہ اپنا ذہن نہ الجھائیں، ایزی فیل کریں۔ وہ کہتے ہوئے کاٹ کی طرف بڑھے۔ اماں جی دونوں کو بات کرتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ کتنے معصوم ہیں میرے بچے۔ ارے زیتون بانو، اللہ تجھے ہدایت کی روشنی دکھائے۔ ان کا دل بھر آیا۔ اماں جی آپ بیٹھ جائیں نا، ناظرین نے کسی دھیان سے چونک کر ساس سے کہا۔ میری بیٹی تو دل اچھا رکھ، یاور کی طرف سے تو پریشان نہ ہو، اس کی تو ہمیشہ سے عادت ہے، یوں ہی ایک دم کہیں نہ کہیں چل پڑتا ہے، اپنی تو سمجھ میں اس کے کام آتے نہیں، مگر بیٹی تو پڑھی ہوئی ہے، تو ہی سمجھنے کی کوشش کر۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ناظرین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس ہاتھ پھیرنا غضب ہو گیا۔ وہ اماں جی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں جی وہ مجھ سے بہت ناراض ہیں، وجہ بھی نہیں بتاتے، مجھے ان سے بہت ڈر لگنے لگا ہے، اسی لیے میں نے رات کو کمرے میں سونا بھی چھوڑ دیا، اوپر بستر لگوا لیا تھا کھلی ہوا کا بہانہ کر کے۔ اماں جی میرا قصور کیا ہے؟ وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ میں صدقے جاؤں اپنی بیٹی کے، میری بیٹی بہت اچھی ہے، زندگی میں چھوٹی موٹی پریشانیاں تو آتی ہی رہتی ہیں، سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو اپنا دل سنبھال۔ دودھ پینے والی بچی گود میں آ گئی ہے، اللہ نصیب بچے کرے، تو خوش ہوگی تو بچی کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ وہ بہت شفقت اور محبت سے اس کی پشت سہلا رہی تھی۔ کیسے خوش ہوں اماں جی، وہ بری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بھابھی بہت غلط بات ہے، اتنی جلدی ہمت ہار دیتی ہیں، یہ سب وقتی ہے۔ دیکھیے آپ کی روتی ہوئی آواز سن کر گڑیا نے بھی رونے والا منہ بنا لیا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے اس کا نام سیٹ ہی نہیں کیا، واٹس اے پرابلم؟ اماں جی ہم آپ کی اجازت سے گڑیا کا نام رکھ رہے ہیں، جو ہمیں بے حد پسند ہے، روشانی۔
रोशान यावर अली खान, है ना बड़ा बारूआब सा नाम। बड़ा खूबसूरत नाम दिया है चचा ने, सबसे अच्छा तोहफ़ा। क्यों बेटी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अम्मा जी ने खुश होकर नाज़नीन का चेहरा अपने हाथों में लिया और पेशानी पर बोसा दिया। ऐसे तो वो घबराते हैं जो अकेले होते हैं। हवेली में जितने हैं सब तेरे अपने हैं, तेरी खुशी की खातिर सब कुछ कर सकते हैं। वाक़यात खा कुछ हो, अम्मा जी का मामला उनके अपने दिल की गवाही के साथ साथ था। नाज़नीन का रोना उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। गुज़रे दिनों में क्या हुआ क्या सुना उस वक्त उनके जहन से महू हो चुका था। तो और क्या, ठीक कह रही हैं अम्मा जी, जब तक आपकी परेशानी दूर न कर दें हवेली के एक एक फर्द पर मुस्कुराहट जुर्म है। क्या समझ रही हैं आप? और जो आपकी खुशी, आपके सुख छीनने की कोशिश करे, उसका गोश्त हम चील कौवों को खिला देंगे। अब अगर आप फिर रोएं तो बहुत गलत बात होगी। इसका मतलब होगा आप यहाँ खुद को तन्हा समझती हैं। देखिए, हम किसी तरह से यावर भाई को बरामद करके आपके हुजूर पेश करेंगे। माफ़ी मांगेंगे वो आपसे। आप फ़ौरन माफ़ मत कर दीजिएगा, थोड़ी सख्ती दिखाइएगा, ताकि आइंदा इस किस्म की ज़्यादती करने से पहले वो 100 बार सोच लें, ठीक है? वो नाज़नीन के करीब आकर बहुत अपनायत व खुलूस से कह रहे थे। मगर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी उलझन बदस्तूर थी। आप इस बात को अहमियत ना दें, हम आपसे कह रहे हैं ना, इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। बस अम्मा जी का दिल बहुत कमज़ोर है, बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। इनकी खातिर खुद को संभाल लीजिए प्लीज़। नाज़नीन दुपट्टे से आंखें साफ़ करते हुए अम्मा जी से अलग हो गई। अच्छा ये बताइए, आपका खाना परहेज़ी तो नहीं चल रहा, ताकि हम मामा से कोई अच्छी सी डिश बनवा कर भिजवाएँ? बताओ, क्या जच्चा को सिरी पाए खिलाओगे? अभी इसको और कुछ नहीं खाना, बस हल्की फुल्की ताकत की चीज़ें। मैंने अपने हाथों से गोंद बनाया है, देखना क्या घोड़ों की सी ताकत आ जाएगी। अम्मा जी ने तैमूर को बड़ी तफसील से बताया। फिर तो हम भी खा सकते हैं, तैमूर ने बरजस्ता कहा। पहले इस तरह के काम तो करो। अम्मा जी मुस्कुराकर बच्चे के फैले हुए कपड़े बैग में रखने लगी। नाज़नीन पुश्त फेर कर मुस्कुराने लगी। तैमूर अली खान खिसियाकर सर झुकाने लगे थे। नाज़नीन छठी नहाई थी। हवेली में ईद का समा था, खैरात का खाना बाहर पक रहा था और अंदर किचन में घर वालों के लिए दावत का एहतमाम था। नाज़नीन पर चौथी की दुल्हन का गुमान हो रहा था। रोशान कॉट में और जवाद उसकी गोद में था और माँ के चमकीले भड़कीले कपड़ों से बहुत परेशान था। जेवरात खींच खींच कर उतारने की ज़िद कर रहा था। बेजार तो वो ख़ुद भी थी, मगर अम्मा जी के खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। तज़नीन और रोशन आरा भी आई हुई थी। अभी उन्हें यावर अली खान की गैर मौजूदगी की हकीकी वजह मालूम नहीं थी। इधर उधर होना हवेली के मालूमात का हिस्सा था। बाज़ औक़ात तो हवेली के सभी मर्द कहीं न कहीं निकले हुए होते थे। बड़े अब्बा कराची फैक्ट्री के किसी काम से, बसीर अली खान किसी दूसरे शहर, बाबा साहब शिकार पर या पेशावर, खैराबाद वगैरह, यावर अली खान अपने काम से, तैमूर अली खान लंदन, और जो दूसरे साथ रहते थे आलमताब के बहनोई वगैरह, वो अपने काम से। ऐसे दिनों में हवेली में बड़ी खामोशी और फुर्सत सी हुआ करती थी। हाय भाभी, आज तो बस गज़ब हो रहा है सब पर। एक वो हमारा भाई, मैं आपकी जगह होती ना तो कब की उनकी किताबों फाइलों को आग लगा चुकी होती। तज़नीन ने रोशी को अपनी गोद में भरकर चट चट कई बोसे लिए। तैमूर भी नहीं है, बड़ी बेरौनकी सी है ना? वो नाज़नीन से तायद ले रही थी। पूरे 28 घंटे हो गए उन्हें पेशावर गए हुए। नाज़नीन ने सर दाब भरी। कुछ मिनट और कुछ सेकंड भी हुए होंगे। जब हिसाब ही करना है तो पूरा पूरा करें। तज़नीन ने 28 घंटों के ज़िक्र पर अपना ताज्जुब छुपाकर मुस्कुराकर टुकड़ा लगाया। उसी दम अम्मा जी ने कमरे में आकर इतला दी कि तैमूर अली खान आ गए हैं। नाज़नीन ने चौंक कर उनके चेहरे की एक एक लकीर में कुछ ढूंढने की कोशिश की। अम्मा जी जैसी खुली किताब जैसी औरत कुछ छुपाने में कामयाब हो भी नहीं सकती थी। नाज़नीन ने अपने अंदर दुख की गहरी काट महसूस की। अभी हम लोग जिक्र ही कर रहे थे, भाभी तो 28 घंटे गिन कर बैठी हैं। क्या कह रहे हैं तैमूर, हमसे मिलने भी नहीं आए? तज़नीन ने रोशी को वापस नाज़नीन की गोद में डाला और बेड से उतरते हुए शुक्रिया के अंदाज में गोया हुई। तुम अभी यहीं बैठो, भाई थका हुआ आया है। बेटी नहा धो ले, फिर मिल लेना। अम्मा जी की आवाज़ की लर्जिश सिर्फ नाज़नीन महसूस कर सकती थी। उसने बमुश्किल अपने आंसू ज़ब्त किए थे। चाय भिजवा दूँ तुम दोनों के लिए? अम्मा जी के कदम जो मन भर के हो रहे थे, चलते चलते एक सानिए को रुके। भिजवा दीजिए अम्मा जी, बल्कि रोशन आपा वगैरह को भी यहीं भेज दीजिए। भाभी भाई के बगैर बहुत उदास है, ज़रा उनका दिल बहलेगा। तज़नीन ने शरारत से कहा। भेजती हूँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अम्मा जी में इतनी ढेर सारी हिम्मत जाने कहाँ से आ गई थी, बहुत मजबूत महसूस होने लगी थी।
अम्मा जी बारी को खाना खिला रही थी। वो बहुत ज़िद्दी मूड में था, बमुश्किल काबू में आ रहा था। मुतरबा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है अम्मा जी। तज़ीन अम्मा जी के दुपट्टे में नाजुक सी बेल टाँक रही थी। अम्मा जी ने दूर सोफ़े पर बैठे तैमूर अली ख़ान की सिम देखा जो टेलीफ़ोन डायल कर रहे थे। उन्होंने हुंकारा भरने पर इक्तफ़ा किया। क्या हो गया? तज़ीन ने फ़िक्रमंदी से पूछा। ऐसे ही बुखार वगैरह है। वो झूठ बोलते हुए बहुत उलझन महसूस कर रही थी। बहुत ही गम लगा लिया है इसने, अपनी जान को संभाल नहीं पा रही। तज़ीन ने दुख से कहा। अम्मा जी खामोश रहीं। यावर भाई कब तक आ जाएंगे? अगर ज़हीर आ जागे तो उनसे मुलाकात ना हो सकेगी। अम्मा जी की आंखों में पानी तैरने लगा। ले बेटा थोड़ा सा और खा ले, शाबाश। अम्मा जी ने तवज्जो इधर उधर की। अम्मा जी भाभी कुछ गुमसुम सी लगी हैं इस मर्तबा। क्या बेटी के पैदाइश पर खुश नहीं हैं? नहीं, तुम्हारा वहम है, कमज़ोरी बहुत है, निढाल है, 2-4 रोज़ में ठीक हो जाएगी। अम्मा जी ने निवाला बनाकर बारी के मुंह में दिया। आप कहती हैं तो मान लेते हैं, मगर मुझे तो कुछ और महसूस हो रहा है। रोशन आपा भी कह रही थी। तज़ीन को यकीन नहीं आया था। वो सीधा मामा हॉल में दाखिल हुई। बीबी जान, आपको बड़ी बेगम अपने कमरे में बुला रही हैं। अच्छा चलो आ रही हूँ। वो दुपट्टा तपाई पर रखकर उठ खड़ी हुई। जी शरदानी साहब। जी, तैमूर अली ख़ान बात कर रहा हूँ। बताया था आपके पीए ने। जी। परसों कुछ बताया नहीं कि फिर कहाँ चले गए? ठीक। अब कब आने का इम्कान है? कुछ अंदाज़ा तो होगा। जी ठीक है, थैंक्स, ओके। तैमूर ने रिसीवर बेदिली से क्रेडल पर डाल लिया था। अम्मा जी तो कान खड़े किए बड़ी तवज्जो से सुन रही थी। परसों कहाँ आया था? वो बेताबी से पूछ रही थी। नौशहर छावनी, उन्होंने नहायत इख्तिसार से जवाब दिया। अब कहाँ हैं? अम्मा जी तो इस एहसास के तहत कि यावर अली ख़ान को कहीं तो देखा गया है, हाथ पैर फुला बैठी। ये पता चल जाए तो मसला क्या है। वो थके थके अंदाज में गोया हुए। अम्मा जी सदके जाए, क्या बात है बेटे? वो तड़प कर बोली। अम्मा जी भाई इतना नाकाबिल एतबार और एक बेवकूफ़ लड़की इस कदर मोतबर। वो हमसे कुछ कहते तो शूट कर देते हमें, मगर अब जो कर रहे हैं उसके साथ क्या क्या अजाब छुपे हुए हैं उसका अंदाज़ा नहीं है उन्हें। उनके अंदाज में भला की शिकस्तगी थी। वो ऐसा नहीं है जैतून बानो जो सबके सामने ऑल फॉल बोली है, ये बड़ी बात है। उसकी जगह कोई भी होता। वो रुक गई। बेटे ऐसा तो नहीं है कि सदमे से जैतून बानो के दिमाग में फ़र्क आ गया हो और उसे ख़ुद भी ना पता हो कि वो क्या कर रही है? एकदम उनके दिमाग में नया ख़्याल आया। देखा नहीं, अली के मौत वाले दिन भी उसके हवास जवाब दे गए थे। कितने टीके लगाए थे डॉक्टर ने। वो मज़ीद गोया हुई। तैमूर अली ख़ान ने सुलगती हुई निगाह माँ पर दौड़ाई। बहुत सीधी हैं अम्मा जी आप, हम सब आपका क्या करें? वो कदरे तलखी से गोया हुए। अगर हमें भाभी का ख्याल ना हो तो उसका जहनी तवाज़न आज बहाल कर दे, मगर हम नहीं चाहते कि भाभी के कान में इस किस्म की कोई भी बात पहुँचे। वो बहुत नफीस, बहुत नेक तबीयत है। वो दुख भरे अंदाज में बोले। अम्मा जी ने बग़ौर बेटे की शक्ल देखी। भावच की नेक फितरत का अंदाज़ा लगाने वाला कजरो भला कैसे हो सकता है? तुम मुझे जैतून बानो के कमरे की चाबी दो, मैं उससे पूछूं तो कि उसने इस तरह की बात किसकी शय पर मुँह से निकाली है। बेकार है अम्मा जी, हम खुद निपट लेंगे, बस ज़रा यावर भाई हाथ लग जाएं। उनके बगैर दरअसल कुछ भी दुरुस्त नहीं होगा। उनका यहाँ मौजूद होना निहायत ज़रूरी है। वो बहुत उलझे हुए थे। इशा का वक्त हो चुका था। अम्मा जी नमाज के लिए उठने वाली थी। उन्होंने रुमाल से बारी का मुंह साफ़ किया। जाओ बेटे काका जान से बातें करो। अम्मा जी इतने में नमाज़ पढ़ लें। मेरा फूल सा बच्चा चंद दिनों में कैसा मुरझा गया है। उन्होंने बारी के पेशानी से बाल समेटते हुए नहायत दुख से कहा। इधर आओ पार्टनर। तैमूर अली ख़ान ने बारी को बुलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उनके करीब चला गया। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? मिस पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं? काका जान, ना वो मिस है ना वो सर है, वो तो बुढ़ियाँ हैं। उन्हें मैडम कहते हैं। वो संजीदगी से बता रहा था। ऐसे आसाब शिकन माहौल में मुस्कुराहट का तस्वर भी मुहाल था, मगर वो अपने होठों पर आने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट रोक नहीं सके। देखा माशाल्लाह कैसी प्यारी बातें करता है। अम्मा जी भी मुस्कुरा दी। काका जान। जी मेरी जान। अम्मी डॉक्टर के पास से कब आएंगी? उसकी आवाज़ भरा रही थी। आ जाएगी पार्टनर, ये इतने सारे सब लोग आपके पास हैं, आप अकेले तो नहीं हैं। उन्होंने उसका रुखसार छूकर कहा। हम आपको घोड़े की सैर कराएंगे, आपको शेर दिखाने ले जाएंगे। कितने? बहुत सारे शेर।
बारी के अंदर एक नया जोश पैदा हो गया। बहुत सारे तो नहीं, एक शेर, एक शेरनी और उनके 2 बच्चे। शेरनी बच्चों की अम्मी होती है, वो मासूमियत से पूछ रहा था। कर तू और 2-4 रोज़ अम्मी अम्मी पार्टनर, इसके बाद तो तुम्हें ऐसा बना देंगे कि आगे चलकर तुम दूसरे का सहारा बनो और ख़ुद किसी सहारे की आस रखो और न जुस्तजू। वो फिर किसी ख्याल में डूब गए। कैसी बातें कर रहे हो तैमूर, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जी जाते जाते पलटी और बहुत फ़िक्रमंदी से गोया हुई। तैमूर अली ख़ान बड़ी तल्ख़ी से मुस्कुराए थे। ऐन उसी लम्हे नाज़नीन ने अंदर कदम रखे थे। वो बिल्कुल सादा सूती लिबास में थी। उसके बालों में तेल चमक रही थी, जिससे ज़ाहिर होता था कि कुछ देर कबल मसाज हुआ था। बाल खुले हुए थे, सिवाय नाक में चमकती हीरे के लौंग के किसी किस्म का जेवर का बोझ नहीं था। पाँव में भी रबड़ की वो चप्पल थी जो बाथरूम के इस्तेमाल के लिए मखसूस थी। अम्मा जी, कहाँ है वो मनहूस? उसके अंदाज में एक दीवानगी सी थी। कौन बेटी? बुरी बात, किसी को मनहूस नहीं कहते। अम्मा जी ने घबराकर उसे शानों से थाम लिया। कहाँ छुपा दिया आप लोगों ने उसे? अगर नहीं तो फिर जान लीजिए कि वो यावर के साथ चली गई है। वो बिफरी हुई थी, ना उसका पता है ना यावर का। अम्मा जी देखिएगा, मैं उस नागिन का फन कैसे कचलूँगी। आए तो सही मेरे सामने। आपको मेरी बात का एतबार नहीं है? ये तैमूर बैठे, इनसे पूछ लीजिए। यावर ने मेरे और इनके सामने खुल्लम खुल्ला उसे सपोर्ट किया था और उनकी शय पर उसने मुझसे और तैमूर से कितनी बदतमीज़ी की थी। पूछ लीजिए। बताइए तैमूर अम्मा जी को, क्यों छुपा रहे इनसे हकीकत? अम्मा जी, मुझे वो नागिन चाहिए, वरना सुबह होने से पहले मेरे दिमाग की एक शरियान फट जाएगी। नाज़नीन पर बला की वहशत सवार थी। अम्मा जी, वो सिर्फ खूबसूरत ही तो है, और तो किसी चीज़ में वो मेरे बराबर नहीं है। नाज़नीन अम्मा जी के शाने से सर टिकाकर फूट फूट कर रो पड़ी। पागल नहीं तो? ये कैसे वहम सताने लगे बेटी? लाहौल वला कुव्वत, ऐसी कोई बात नहीं है। तू कह तो मैं कसम खा लूँगी तेरी तसल्ली को। अम्मा जी ने उसे अपने सीने से लगाया। फिर कहाँ गई वो? तैमूर, आप क्यों चुप हैं? बताएं ना अम्मा जी को कि असल बात क्या है। यह बड़ी मजरमाना खामोशी है इस वक्त आपकी। मुझे इस वक्त आपकी मोरल सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, और आप हैं कि चुपचाप बैठे हैं। बताएं ना अम्मा जी को जो कुछ हुआ था। अब हम में से किसी से भी बदगुमान ना हो। यहाँ मौजूद हर शख्स दिलो जान से आपका मुखलिस है। फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? तैमूर अली ख़ान ने बहुत रसानियत से सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की। नहीं नहीं, आप मेरे सामने बताएं अम्मा जी को। वो जैसे कुछ सुनने को तैयार न थी। बेटी, मुझे सब पता है, यकीन करो, बात वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। तो फिर बात क्या है? उसने तेज़ी से अम्मा जी की बात काट दी। अम्मा जी तैमूर की सिमत एक निगाह डालकर खामोश हो गई। नहीं, बात यही है। फिर वो कहाँ है? ये बारी अकेला क्यों है? आपके पास क्यों है? ये देखिए, इसे खाना भी आपने खिलाया है। इसने ट्रे की सिमत इशारा करके कहा। आप लोग समझने की कोशिश करें, ये उसके खून का तकाजा है, कुछ अनहोनी नहीं हुई। घर उजाड़ना उनकी गलीज़ फितरत का तकाजा है। बुरी बात बेटी, यूँ किसी के नाम नस्ब को गाली नहीं देते। अम्मा जी ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरते हुए उसे ठंडा करने की कोशिश की। मैं लुट रही हूँ। आप कैसी माँ है, मेरा दुख नहीं समझ रही। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तैमूर अली ख़ान हैरान परेशान बारी को सोफे पर टिकाकर उन दोनों की सिमत पढ़े। माय गॉड भाभी, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हम आपको इससे मिलवा देंगे, वो यही है हमारे पास। नाज़नीन ने बेयकीनी के अंदाज में उनकी सिम देखा। कहाँ है? उसकी बेताबी काबिल दीद थी। बाबा साहब ने उसे हवेली से बेदखल कर दिया है। अब यहाँ चलती फिरती वो नज़र नहीं आएगी। अलबत्ता हम आपको उससे मिलवा देंगे। मगर बाबा साहब ने उसे बेदखल किस वजह से किया? इसी वजह से ना जो मैं कह रही हूँ। नहीं, बात कुछ और है। बाय गॉड, प्लीज़ आप हमारी ज़ुबान का एतबार करें। प्लीज़ तैमूर, आप मुझे बताएं कि क्या बात है। फॉर गॉड सेक तैमूर। अम्मा जी बिला इरादा तैमूर की तरफ देख रही थी, मगर तैमूर का उनका देखना बहुत महसूस हो रहा था। वो निगाह चुराकर एक तरफ हो गए। दुख से अम्मा जी का कलेजा फटने लगा। ये कैसा वक्त है, कैसी बात है जो ज़ुबान से अदा होना मुहाल है, और वो बदनसीब कितने आराम से कह गई, आप मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलवाएं। नाज़नीन बच्चों की तरह मचल गई। ईज़ी भाभी, ईज़ी प्लीज़। हम कह रहे हैं ना कि ज़रूर मिलवाएंगे। आपको हमारी ज़ुबान पर एतबार करना चाहिए। बाबा साहब ने उससे मिलने पर पाबंदी लगाई हुई है। वो उसे कुछ उगलवाना चाहते हैं। देखिए, ये बारी हमारे पास है। प्लीज़ आप आराम करें। वो उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे थे। क्या उगलवाना चाह रहे बाबा साहब? वही ना जो हम सोच रहे हैं।
نازنین نے تڑپ کر ان کی طرف قدم بڑھائے۔ ہرگز نہیں، جو آپ سوچ رہی ہیں وہ تو ہرگز بھی نہیں۔ اماں جی، اب بھابھی کو لے کر ان کے کمرے میں جائیں۔ آؤ باری، باہر چلتے ہیں۔ انہوں نے سہمے ہوئے باری کی سمت ہاتھ بڑھایا تو وہ جلدی سے صوفے سے اتر آئے۔ تیمور علی خان اسے لے کر باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے اماں جی نازنین کو شانوں سے تھام کر چل پڑی۔ ماما، محتربہ کے کمرے کی چابی آپ کے پاس ہے، کھانا تو آپ ہی لے کر جاتی ہیں۔ تیمور علی خان کچن کے دروازے میں کھڑے ماما سے مخاطب تھے۔ جی خان، آپ ٹھہرے، میں اپنے کمرے سے لے کر آتی ہوں۔ ماما دوپٹہ درست کرتی باہر نکل گئی۔ تیمور علی خان راہداری میں پشت پر ہاتھ باندھ کر ٹہلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ماما واپس آ گئی اور چابی انہیں تھما دی۔ تیمور علی خان ایک لمحے ضائع کیے بغیر محتربہ کے کمرے کی سمت بڑھے تھے، جو انتہائی کونے میں بنا ہوا تھا، جہاں حویلی کا اندرونی سلسلہ تمام ہو جاتا تھا اور ایک دروازہ بس پھر ایک وسیع احاطے میں کھلتا تھا، جسے طے کرنے کے بعد حویلی کا دوسرا فیز شروع ہو جاتا تھا، جو حویلی کے ملازمین کے تصرف میں زیادہ رہتا تھا۔ اس طرف زیر زمین اور بالائے زمین بڑے بڑے گودام بھی موجود تھے۔ فصلوں کی کٹائی کے زمانے میں اس طرف زیادہ چہل پہل ہو جاتی تھی۔ تیمور علی خان نے تالا کھول کر بہت آہستگی سے دروازہ دھکیلا۔ محتربہ بغیر دوپٹے کے دریچے میں کھڑی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر پلٹی تھی۔ سامنے تیمور علی خان کو دیکھ کر یکسارگی دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے بے ساختہ ان کے ہاتھوں کی سمت دیکھا تھا، کوئی خنجر کوئی پستول نظر نہ آیا۔ اس نے قدرے حیرانی سے ان کی سمت دیکھا تھا۔ دیکھو لڑکی، وہ کیا نام ہے تمہارا؟ ہم تمہارے پاس آخری بار آئے ہیں، خود پر رحم کرنے کا یہ آخری موقع دینے۔ نہیں کرنا مجھے خود پر رحم، اور کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرنی ہے۔ آپ کے پاس دولت اور خاندان کی طاقت ہے، آپ اسی سے کام لیں، وہ بھڑک کر بولی تھی۔ ان کا خیال غلط نکلا، اس کا دماغ درست ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ بہت ضبط سے کام لے رہے تھے۔ اب کچھ نہیں چاہتی، وہ سابقہ لہجے میں پھنکاری۔ دیکھو، ناز بھابھی کی حالت بہت خراب ہے، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ انہیں کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ ہم نے تمہاری شادی ایک بہترین انسان سے۔ بس بھی کرے خان، وہ آدمی بہترین تھا، مان لیا۔ شیخ رفیع کی لڑکی بھی تو بہترین ہے، کیوں قبول نہیں ہے وہ آپ کو؟ انگریز لڑکی سے نکاح کرتے ہوئے آپ نے سوچا تھا کہ اماں جی کو اس پر کتنا اعتراض ہوگا؟ مگر آپ اپنے دل سے ہار گئے کہ نہیں؟ ماں ہار گئی، دل جیت گیا۔ کیا دل صرف آپ ہی کے پاس ہے؟ اگر وہ انگریز لڑکی ہماری بیوی ہے تو صرف ہماری وجہ سے نہیں، بلکہ وہ خود بھی ہمارے لیے اتنی ہی پیور ہے، سنسیئر ہے، جتنے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ دونوں طرف کی بات ہے۔ تمہیں اپنے حسن پر غیر ضروری اعتماد یا غرور تھا، اسی وجہ سے تمہارا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، کیونکہ غرور بھی پاگل پن کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ صرف حسن سے بات نہیں بنتی محتربہ بیگم۔ تیمور علی خان کے انداز میں واضح صفاقی جھلک رہی تھی۔ ہم تم پر مر کر بھی ظاہر نہ کرتے کہ ہم تمہارے دل کی بات شروع ہی سے سمجھتے تھے، مگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ تم نے اپنی خود غرضی کی آگ میں ہمارے بھائی کا گھر کبھی جلانے کی کوشش کر ڈالی۔ محتربہ بیگم، ایسے نہیں ہوتا جیسے تم سوچ رہی تھی۔ جی تو چاہتا ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور کر دیں اور اخبار میں اشتہار دے دیں تمہاری تصویر کے ساتھ کہ یہ جہاں نظر آئے اسے پتھر مارے جائیں، کہ تم نے ہمیں پریشان کرنے کے علاوہ جو سنگین جرم کیا ہے اس پر جو سزا ہو کم ہے۔ ہم اس وقت صرف تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں یاور بھائی کے سامنے اعتراف جرم کرنا ہوگا، حلف اٹھانا ہوگا۔ تم نے محض اپنی تسکین کے لیے یہ شعلے بھڑکائے، صرف ہم سے انتقام لینے کی نیت سے۔ وہ انتقام بھی اس بات کا کہ تمہارے حسن کو خراج ہم نے خود کیوں نہیں دیا، علی جیسے سادہ اور پرخلوص انسان سے تمہارا رشتہ کیوں جوڑا، یہی بات ہے نا؟ اگر تم ایسا کرو تو ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ رہنا تو پھر بھی مجھے اپنے محرومیوں کے ساتھ ہے۔ جب میں دکھ اٹھا سکتی ہوں تو پھر دوسرے کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ میرے نقصان پورے نہیں ہو سکتے خان، بلکہ آپ کو دیکھتے ہی ایک ایک زخم رسنے لگتا ہے۔ آپ اپنے دل پر زور نہیں رکھتے تو میرے دل پر زور کیوں چلایا؟ اگر یہ اتنا آسان کام ہوتا تو آپ نہ کر لیتے؟ یہ تو اتنا مشکل کام ہے کہ انسان ماں کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ وہ زہر سے زرد ہونے لگی۔ محتربہ، تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ ہم اپنے بھائی کا گھر بچانے کے لیے یہاں تک کرنے کو تیار ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، اماں جی کی پسند سے شادی کر لیں، مگر تمہیں یاور بھائی کے سامنے قسم کھانا ہوگی کہ تم نے ان کے اور بھابھی کے ساتھ زیادتی کی ہے، حلف اٹھانا ہوگا، بلکہ پس پردہ جو کچھ ہے وہ بھی تفصیل سے بتانا ہوگا۔ سن رہی ہو ہماری بات؟ وہ برہمی سے پوچھ رہے تھے۔
یہ تو صرف آپ کے نقصان پورے ہو رہے ہیں، وہ سنگ دلی سے بولی۔ تیمور علی خان کا جی چاہا اس پر فائر کھول دیں۔ ہم اپنا گھر برباد کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں، صرف اپنی بے گناہ بھابھی کی خاطر۔ اتنی بے مایا لڑکی نے انہیں کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا، باقی آئندہ۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ تیمور علی خان اور مطربہ کا قصہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہونے پر روشی اور باری کا کیا ہوتا ہے۔ اب تو مجھے بہت بے صبری سے انتظار ہے کہ روشی اور باری کا کیا ہوگا۔ دیکھتے ہیں آنے والے ایپیسوڈ میں۔ کل جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔